Good morning, students. Welcome to lecture of investment analysis. This is a very important subject in third year of BCom Honors program. It helps us to build our knowledge about how to invest, where to invest, and when to invest. In last lecture, we discussed about what is savings and what is investment. So today, Ritu Singh, is going to discuss another lecture of investment analysis with you. Okay? So let's start with the class. If you have any questions, you can ask me later in to through my mail ID, or you can come to ask me questions in classroom or on WhatsApp groups also. So let's start with the class. So the subject is investment analysis, and we are focusing on the first part of it, first module of it, about the introduction of how to do savings and then how to convert those savings into investments, into profitable investments. So, in last lecture, we studied the difference. We studied the basic definition of savings and investment, in which saving is saving is something which you keep away from your income to be used in future. We do savings for various reasons. Sometimes we need to buy a home or a car, or we need to save for our investment, our education. Then savings is also done if any emergency needs arises. Okay. And investment is something which is you do after having some surplus savings. तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि सेविंग्स हमारी इनकम का वो पार्ट है जो हम बचा के रखते हैं. हमारे हमको जो भी इनकम मिलती है, हमारी जो भी सैलरी है, उसको उसको मिलने के बाद और अपने सारे एक्सपेंसेस को पूरा करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास बचता है, जो रह जाता है, वो हमारी सेविंग्स का पार्ट होता है. फिर सेविंग्स करते करते हमारे पास काफ़ी पैसा जमा हो जाता है. जब रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेविंग से ज़्यादा पैसा हो जाता है, यानी कि हमारे पास सरप्लस में सेविंग्स हो जाती हैं, तो हम उसके उस सरप्लस पोर्शन को निकाल के मार्केट में या डिफरेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट करने लगते हैं. एंड दैट इन्वेस्टमेंट गिव्स अस सम प्रॉफिट. अगर रिस्क नहीं है या रिस्क कम है तो आपको प्रॉफिट हो सकता है. अगर रिस्क अकर हो रहा है, अनफेवरेबल कंडीशंस हो रही हैं, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे लॉस भी हो सकता है. ओके. So we discussed about risk also, and so this was the last chapter. This was the last lecture. So now we have to study various things about different points that why savings are important. Savings क्यों important है, क्यों ज़रूरी है, why it is important for a better future, why it ensures, why and how it ensures better future, and makes you able to understand the further conditions and how saving practices makes you a financially strong person. Okay. So today's topic, which we are going to discuss, is role of saving practices. Why saving practices are important? Why it is said कि saving करना जरूरी है. ऐसा क्यों है कि Warren Buffett, who is one of the billionaires of our world, and his investment techniques are used everywhere, his books are read everywhere. वॉरेन बफेट एक बहुत ही अच्छे और बड़े इन्वेस्टर हैं. ही रिसाइड्स इन अमेरिका, और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत इन्वेस्टमेंट्स किए हैं. उनके 99% इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस टॉपिक पे, उस प्रोजेक्ट पे वो हमेशा काफ़ी अच्छी रिसर्च करते हैं. और अपनी कई किताबों में उन्होंने हमेशा एक चीज़ पे जोर दिया है, एक चीज़ को एम्फसाइज करने की कोशिश की है, जहाँ पे वो अक्सर ये कहते हैं that you should save before spending. आपकी जितनी भी इनकम हो, जो भी इनकम हो, उसमें आपको जितना भी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जितना भी खर्च करने की ज़रूरत है, ज़रूर कीजिए, बट सेविंग्स पहले कीजिए. बिकॉज सेविंग्स
हमारे फ्यूचर को बेटर बनाती हैं, स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। उसके अलावा वॉरेन बफेट एक स्टेटमेंट बार बार देते हैं, जो उनकी कई किताबों में इसका उल्लेख किया गया है। वो ये है कि एवरी पेनी सेव्ड इज एवरी पेनी अर्नड, यानी कि जो पैसा आप सेव कर रहे हैं वो आपकी इनकम के बराबर है। आप अपने लिए एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं अगर आपको सेविंग करने की आदत है। उसके अलावा सेविंग प्रैक्टिसेस में बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं। उन रिसर्चेस में के थ्रू बहुत सारी चीज़ें डिटरमाइन करने की कोशिश की हैं। रिसेंटली एक आपकी यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि पर कैपिटा ऑफ इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज को चेक करती है, उस पर सर्वे किया है। उसमें ये उसमें ये इन्फरेंस, ये कंक्लूजन निकल के आया था कि जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जहाँ पे सुख सुविधाएं बेहतर हैं, वहाँ की पॉपुलेशन के लिए, वहाँ के जनरल पॉपुलेशन के लिए जो भी बेसिक सुख सुविधाएं होती हैं, जैसे कि आपका हो गया, आपकी स्कूल की सुविधाएं हो गई, आपकी एजुकेशन हो गया, आपका हायर एजुकेशन हो गया, आपका हॉस्पिटल एजुकेशन हो गया, और आपका ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो गया। जिन डेवलप्ड कंट्रीज में ये सर्विसेज अच्छी होती हैं, मेंटेन होती हैं, वहाँ के लोग सेविंग्स ज़्यादा कर पाते हैं। जबकि ऐसी कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज या पुअर कंट्रीज, जहाँ पे इस तरह की सुख सुविधाएं जनरल पॉपुलेशन के लिए प्रॉपरली मैनेज नहीं है, उनके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया गया है, और उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम है, वहाँ पे लोग सेविंग्स नहीं कर पाते हैं। जब एक पर्सन सेविंग्स करता है, उसके पास एक सफिशिएंट अमाउंट होता है, एक डिस्पोजेबल अमाउंट होता है जिसे वो इन्वेस्ट कर सकता है, तो वहाँ पे इकोनॉमी ग्रो करती है। Because when a person has sufficient money, surplus money to invest, he gives it to various schemes. That schemes helps the country to bring the money in motion, through which company prospers further. तो हम अब इस लेक्चर में रोल ऑफ सेविंग प्रैक्टिसेस पढ़ेंगे, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। So here is the content, that savings is a portion of income not spent on current expenditures, because a person doesn't know what will happen in future, so some money should be saved for unexpected events or emergencies. So what can be these emergencies? सबसे पहले हम सेविंग्स इमरजेंसीज के लिए ही करते हैं। जो बेसिक मोटिव होता है लाइफ का, जो लाइफ हम जी रहे हैं, जो हम whatever time we are spending on this earth or in universe, we are living a life where we are generating money for ourselves. हम नौकरी कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, और उससे हम कुछ पैसा जनरेट करते हैं। उस पैसे को हम इसलिए जनरेट करते हैं सो दैट हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें, अपने अलावा अपनी परिवार की ज़रूरतें भी पूरी कर सकें, और अच्छी तरह से पूरी कर सकें। तो जब एक व्यक्ति कमाना शुरू करता है, तो उस वक्त उसके दिमाग में एक सबसे ज़रूरी चीज़ या जो सबसे ज़रूरी क्वेश्चन आता है, वो ये होता है कि अगर फ्यूचर में कभी भी किसी तरीके का कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ, कोई इमरजेंसी हुई, तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ पैसा सेव रहना चाहिए। इसके कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं। आपका फॉर एग्जाम्पल आपकी कार खराब हो गई, आपका व्हीकल खराब हो गया, आपके घर में किसी तरह की कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, somebody got ill and they need some immediate medical help. So all these kind of expenses bears comes within huge expenditure. मेडिकल इमरजेंसीज हो गई, किसी भी तरह का कोई आपको रिलोकेट करना पड़ रहा है, आपके ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए, या कभी आपको कभी 10-15 दिन या महीने भर के लिए अनएम्प्लॉयमेंट टाइम पीरियड मतलब व्यतीत करना पड़ रहा है, तो उस केस में आपकी सेविंग्स आपकी और आपकी फैमिली की बहुत मदद करती हैं, और आपको एक फाइनेंशियली सिक्योर इंडिविजुअल बनाती हैं। Sometimes when a person life is going good, so every person tries to better his status, every person tries to upgrade his living standard. कोई भी व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है, पैसे कमा रहा है, वो चाहता है कि उसके जीवन जीने का तरीका, उसके जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, वक्त के साथ साथ धीरे धीरे बेहतर होते रहें, उसके लिविंग स्टैंडर्ड्स अपडेट होते रहें। तो ऐसा कब होगा? अगर कोई व्यक्ति जो आज स्कूटर चलाता है, वो आगे जाके कार खरीद सके। कोई व्यक्ति जो आज किराए के मकान में रह रहा है, वो आगे जाके अपना घर खुद खरीद सके।
कोई व्यक्ति जो आज जिसके बच्चे छोटे हैं और अभी वो प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल स्कूल में पढ़ रहे हैं, आगे जाके जब वो ग्रेजुएशन करेंगे या यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाई करने जाएं, तो उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी फीस के लिए पैसों की कमी ना पड़े, ये सारी चीज़ें इंश्योर करने के लिए कोई भी पर्सन सेविंग्स करता है. Then next is that policy makers should also focus on increasing the level of domestic private savings, because the crucial problem of developing country is the lack of investment, which restricts economic growth. The savings of people serve as the basis of investment resources of the country and are essential for development and growth. तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहा है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है, उन्हें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, उन्हें इस तरह की सर्विसेज अपने लोगों को देनी चाहिए कि वो सेविंग्स करने के लिए इनकरेज हो सके, उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिले कि जिसमें वो सेविंग्स कर सके. बिकॉज सेविंग्स अगर किसी व्यक्ति के पास है, अगर उसके पास डिस्पोजेबल इनकम है, तो कम वो कंट्री की गवर्नमेंट की वेरियस इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में उस पैसे को लगाएगा. जब वो पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा, गवर्नमेंट उसे यूज कर पाएगी, तो वो उसे कंट्री के बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यूज कर पाएगी, और उससे फाइनल जो प्रॉफिट होगा, जो फाइनल फायदा होगा, वो कॉमन पीपल यानी कि उस कंट्री की जनरल पॉपुलेशन को ही होगा. Then also, the increase of savings will lead to the capital accumulation, which will eventually lead to the economic growth. A high level of domestic savings will also serve the solution of the problems of unemployment, contribute to development of entrepreneurship, and can therefore positively influence the rate of economic development. तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहा है कि जब सेविंग्स मार्केट में आती है, व्हेन देयर आर सेविंग्स इन द मार्केट, when people are investing their savings in the market, then they are able to give money to the economy. तब वो पैसा इकोनॉमी में आ रहा है और इकोनॉमी की दूसरी चीज़ों को यूज़ करने में इस्तेमाल हो सकता है. तो अगर आज आप सेविंग्स कर रहे हैं और उस सेविंग्स को जाके गवर्नमेंट स्कीम्स में और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप बेसिकली गवर्नमेंट को ही पैसा दे रहे हैं ताकि वो नए नए बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकें, लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप को, इसकी हैबिट को इनकरेज कर सकें. एंड व्हेन देन देयर आर न्यू एंटरप्रेन्योर्स इन द मार्केट, जब मार्केट में नए बिजनेसमैन आएंगे, नया बिजनेस लेके आएंगे, तो वो कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करेंगे. So, under a strong financial system, the level of savings can be reliable gauge of the economic development of the country. So, जब एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम अकर कर रहा है, जहाँ पे लोगों के पास सेविंग्स हैं, फिर वो सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर उन इन्वेस्टमेंट्स उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है, उस प्रॉफिट को यूज करके अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज कर रहे हैं, अपने जो अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर रहे हैं. All these factors, all these steps contribute to the economic development of the country. Okay. So, besides the saving rate, also along with the inflation and unemployment can be considered as an indicator of country's economic situation. So, किसी भी कंट्री का जो सेविंग रेट है, उस कंट्री के इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के साथ अगर देखा जाए, तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि उस कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है. सो अगर हम प्रेजेंट कोविड टाइम्स की बात करें, तो जो हम जितनी भी पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, उसके पास जो सेविंग्स हैं, उसके अलावा जो महंगाई हमारे यहाँ बढ़ रही है, उसके अलावा कोविड-19 की वजह से जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज हुआ है, ये सारी कंडीशंस ये बताती हैं कि किसी भी देश की कंडीशन कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, क्या वो देश अपने जनरल पॉपुलेशन की हेल्प करने के काबिल है, क्या उसके रिसोर्सेज, क्या उसके पास जो भी खजाने में, उसकी ट्रेजरी में जो भी पैसा है, वो रिक्वायरमेंट पड़ने पे या किसी भी आपदा के आने पे लोगों की मदद कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. और यहाँ पे ये भी डिसाइड हो जाता है कि इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं, हम ये जान सकते हैं कि कोई कंट्री, कोई सी भी कंट्री, उसका जो स्टेटस है वो डेवलप्ड कंट्री का है, डेवलपिंग कंट्रीज का है या पुअर कंट्रीज का है. Then the next is the estimation of volume of savings of population.
The search for the ways of its use and stimulation of investment activities of people should be a priority task for the government. The efficiency of measures will be productive only if the involvement of savings will favorably affect the well-being of people. तो सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि किसी भी कंट्री में जो उसकी पॉपुलेशन है, उसके पास वो जो सेविंग्स है, अगर वो उन सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट करके कैश फ्लो में ला रहा है, इकोनॉमी की कैश फ्लो में लेके आ रहा है, ये एक अच्छी बात है. किसी भी गवर्नमेंट को अपने जो जनरल पॉपुलेशन है उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो पैसा इन्वेस्ट करें, डिफरेंट स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करें. ऐसा करने से इकोनॉमी में जो कैश फ्लो है वो जनरेट होगा. दैट कैश विल बी यूज्ड फॉर डिफरेंट स्कीम्स, फॉर डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम्स, फॉर डिफरेंट एंटरप्रेन्योरशिप इंकरेजमेंट स्कीम्स. और फिर इस केस में यहाँ पे गवर्नमेंट को भी ध्यान रखना है कि वो इस पैसे को इस तरीके से यूज करें कि जो जनरल पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, उनकी वेलबींग के लिए ये मनी यूज किया जा सके. So in this case, not only investment activities will be boosted, but also population entrepreneurial potential, which will contribute to the increase of income and employment, as well as to improvement of quality of life. So savings एंड इन्वेस्टमेंट इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि अगर ये सही तरीके से हो रही है, पीपल आर अवेयर अबाउट हाउ टू डू सेविंग, हाउ टू डू इन्वेस्टमेंट, वेयर टू डू इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स कितनी करनी है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, किस समय पे करना है. अगर इसकी जानकारी या इससे रिलेटेड अवेयरनेस जनरल पॉपुलेशन को दिलाई जाए गवर्नमेंट की हेल्प से, तो वो इस पैसे को इकोनॉमी में लेके आ सकते हैं और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं. Next is that the saving and investment plays an important role in our world economy. Consumption is expenditure by the household on final goods and services. Saving is the part of disposable income that is not consumed at present. Investment means the purchase of capital goods. So saving, हम इस चीज़ पे, इस पॉइंट पे बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं कि इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, इकोनॉमी को बेटर बनाने के लिए सेविंग्स का होना बहुत ज़रूरी है. So because when a person has savings, when a person has investment, और उससे जब उसको प्रॉफिट मिलता है तो वो उस प्रॉफिट को यूज करता है कंज्यूम करने के लिए, अपने घर में चीज़ें लाने के लिए, अपने घर में नई नई कमोडिटीज परचेज करने. इस केस में जब कंजम्पशन होते हैं, कंजम्पशन इंक्रीज करता है, एक हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर बढ़ता है, तो वो जो डिस्पोजेबल इनकम है वो यूज होती है इक्विपमेंट, लैंड और बिल्डिंग को परचेज करने के लिए. So, if a society invests more in capital, it must consume less and save more for its current income. तो यहाँ पे ये पॉइंट भी है कि अगर सोसाइटी इन्वेस्ट कर रही है कैपिटल में, तो उसको थोड़ा सा कंजम्पशन लेस करना पड़ता है, यूटिलिटी को ध्यान में रखते हुए कंजम्पशन करना पड़ता है और अपने करंट इनकम का जो सेविंग पोर्शन है वो बढ़ाना पड़ता है. So sometimes to revive the economy, sometimes to uplift the economy, people have to sacrifice their some consumptions so that in order to enjoy higher consumption in the future. सेविंग और इन्वेस्टमेंट में हमको यही पता चलता है, ये हमें इंकरेजमेंट मिलती है कि हमें इस तरीके से कंजम्पशन करना है. हमें आज भले ही थोड़ा सा अपने कंजम्पशंस पे लगाम लगानी पड़े, अपने कंजम्पशंस को थोड़ा सा ध्यान देना पड़े, हमें इस चीज़ को मेंटेन करना पड़े कि हम खर्चे कहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं. इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो फ्यूचर में हमें एक ऐसा समय मिलेगा जहाँ पे हम अच्छा कंजम्पशन कर पाएंगे, क्वालिटी गुड्स का कंजम्पशन कर पाएंगे और उसके लिए हमारे पास रेलेवेंट एंड रिक्वायर्ड फाइनेंसेस और इनकम होगी. So it is also said that nations that invest and save large fraction of their income tend to have rapid growth of output, income and wages. तो जिस भी नेशन में, जिस भी कंट्री में लोगों को सेविंग्स करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनकरेज किया जाता है, उस कंट्री का जो आउटपुट ग्रोथ होती है, उस कंट्री की जो एवरेज इनकम और वेजेस होती हैं वो इंक्रीज करती हैं. So this is the
requirement. This is the role of saving practices into our day to day lives. It is very important. सेविंग्स करने से हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हम फ्यूचर के लिए तो अपने पास सफिशिएंट अमाउंट रख ही पाते हैं, बट हमें अपने लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए और अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हम उन्हें अफोर्ड भी कर पाते हैं. तो सेविंग के कुछ डिविजन्स हैं. So saving can be subdivided into private saving, public saving, national saving. And investment includes, और investment में क्या होता है? Investment includes tangible capital such as houses and intangible investments like education. So again, investment can be of net investment or gross investment. Net investment is the value of total investment after an allowance has been made for depreciation. So gross investment is an investment without allowance for depreciation. So यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि सेविंग्स 3 तरीके की हैं, प्राइवेट सेविंग, पब्लिक सेविंग एंड नेशनल सेविंग. तो यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट हम आगे भी जाके पढ़ेंगे, पर मैं आपको फिर से थोड़ा सा ब्रीफ भी दे देती हूँ. तब भी प्राइवेट सेविंग जब एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड सेविंग्स करता है अपने फ्यूचर के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, तो हम उसे प्राइवेट सेविंग कहते हैं. पब्लिक सेविंग्स वो होती हैं जब अगर कोई इंडिविजुअल बैंक में अपना पैसा सेव करता है जाके. और नेशनल सेविंग्स में होता है कि जब कोई इंडिविजुअल गवर्नमेंट की स्कीम्स में या म्यूचुअल फंड स्कीम्स में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो पैसा गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जा रहा है, तो हम उसे नेशनल सेविंग कहते हैं. उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट भी आपके 2 तरीके के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल. तो अगर आप घर खरीद रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, लैंड खरीद रहे हैं, तो वो टेंजिबल इन्वेस्टमेंट है. और अगर आप एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, एजुकेशन को बेटर कर रहे हैं, ग्रेजुएट लेवल की पढ़ाई कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ने जा रहे हैं, तो उसे हम इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट कहते हैं. इन्वेस्टमेंट 2 तरह के हो सकते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रोस इन्वेस्टमेंट. ग्रोस इन्वेस्टमेंट वो होता है जब आप इन्वेस्टमेंट तो करते हैं पर उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डेप्रिसिएशन फैक्टर को कैलकुलेट नहीं करते हैं. जब आप डेप्रिसिएशन अपनी इन्वेस्टमेंट में नहीं कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम ग्रोस बोलते हैं. और जब आप उस ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन के फैक्टर को रिड्यूस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो उसे हम नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं. So in terms of finance, the investment has an altogether different meaning and denotes the purchase of securities such as a stock and bond. Saving can be influenced by level of consumption, population growth, political stability and instability, rate of income, and it is known to us saving influences over investment in an economy. So saving is a crucial topic or a crucial prerequisite for investment. If the rate of saving is increased, it might mean the rate of investment will also increase. तो ये पॉइंट ये है कि इस पॉइंट पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट तब होती हैं जब एक व्यक्ति के पास सफिशिएंट सेविंग्स आ जाती है. किसी भी कंट्री में, किसी भी इंडिविजुअल पॉपुलेशन में सेविंग्स इस चीज़ से डिटरमाइन होती हैं कि वहाँ पे कंजम्पशन कैसा है, लोग क्या क्या चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं, वो उनका काम जो है, उनका जो भी उनकी जो दिनचर्या है किन किन चीज़ों से पूरी होती है. फिर उस कंट्री के पॉपुलेशन ग्रोथ पे डिपेंड करता है, पॉपुलेशन ग्रोथ कम है या ज़्यादा है. अगर कम है यानी कि पॉपुलेशन कम मात्रा में बढ़ रही है, यानी कि लोगों के पास खर्चे उतने ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, तो दे कैन मेंटेन. तो ऑल दीज पॉइंट्स कैन हेल्प टू डिटरमाइन द इन्फ्लुएंस ऑन इन्वेस्टमेंट. तो इस केस में भी इन्वेस्टमेंट से पहले इन्वेस्टमेंट का प्री रिक्विजिट है सेविंग्स. सेविंग्स बहुत ज़रूरी है. अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई इंडिविजुअल सेविंग्स नहीं कर रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी पैसा नहीं निकाल पाएगा. उसकी रेट ऑफ इनकम, उस कंट्री की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे कि उसे इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है. और जब आप इन सारे केसेस में, इन सारे फैक्टर्स में फेवरेबल कंडीशंस बना देते हैं, फेवरेबल कंडीशंस को मेंटेन कर देते हैं, तो एक व्यक्ति की, एक जनरल पॉपुलेशन के सेविंग्स के लेवल इंक्रीज करते हैं. और जब सेविंग लेवल इंक्रीज कर जाता है तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट का लेवल भी इंक्रीज करता है. सो
capital accumulation or efficiency in productivity is also increases. Okay. Now here comes the point of private saving. अभी हमने private saving, public saving और national saving का एक point पढ़ा था. अब हम उसका थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे यहाँ पे. So private saving is the part of disposable personal income that is not consumed. Private saving किसी भी income का वो part है जो कि consume नहीं हुआ होता है. पर्सनल सेविंग का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल एक्सपेंडिचर करने पे हमें पर्सनल सेविंग्स मिल जाती है, यानी कि प्राइवेट सेविंग्स मिल जाती है. एक व्यक्ति की इनकम कितनी है उसमें से जब अपने सारे एक्सपेंडिचर माइनस कर देता है तो जो लास्ट इन अमाउंट बचता है उसे हम प्राइवेट सेविंग या पर्सनल सेविंग कहते हैं. So in general, personal saving is the income of individuals which can remain on their bank accounts for future use or can be directly invested into house, bond, shares and other financial instruments. The next is the public saving. What is public saving? So public saving is the government income, basically the tax revenue that the government has saved after paying its spending, and thus ordinary government saves a partial amount of income for several purposes, several servicing purposes such as human activities for the country's development or give the people certainty. For good health and education and social welfare, public savings is important. And so we can say that the public savings formula can be the tax revenues minus public expenditure. तो पब्लिक सेविंग्स को हमने पहले ही बोला कि जब कोई भी इंडिविजुअल अपने पैसों को, सरप्लस पैसों को गवर्नमेंट के पास लेके जाता है स्कीम्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो हम उसे पब्लिक सेविंग्स कहते हैं. इस केस में आपका टैक्स भी आता है. जब आप अपनी गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे होते हैं तो आप अपनी गवर्नमेंट को एक इनकम दे रहे होते हैं. वो उस इनकम को यूज करता है एक्सपेंडिचर्स के लिए. आप जो भी टैक्स देते हैं, आप जो भी टैक्स भरते हैं, चाहे वो आपका इनकम टैक्स हो, चाहे वो आपका जीएसटी टैक्स हो, चाहे वो आपका टोल टैक्स हो, वो पैसा यूज होता है, एक्सपेंडिचर होता है उसका कंट्री की वेलफेयर एक्टिविटीज को, एजुकेशन को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर बनाने के लिए. तो पब्लिक सेविंग वो है, वो अमाउंट है जो कि एक गवर्नमेंट के पास बचता है टैक्स रेवेन्यू से एक्सपेंडिचर्स माइनस करने के बाद. यानी कि मान लीजिए इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे 130 करोड़ की आबादी है और उस आबादी में से करीब 10% लोग इनकम टैक्स भरते हैं सिर्फ. अब वो जो इनकम टैक्स भरते हैं उसकी जो वैल्यू है वो 10,000 करोड़ है. अब उस 10,000 करोड़ में अगर गवर्नमेंट ने 8,000 करोड़ यूज कर लिया है पब्लिक एक्सपेंडिचर्स में, यानी कि रोड बनवाने में, ब्रिजेस बनवाने में, स्कूल या कॉलेजेस बनवाने में, वहां पे इक्विपमेंट पहुंचाने में, तो जो 2,000 करोड़ रुपए है जो गवर्नमेंट के पास बच रहा है उसे वो पब्लिक सेविंग कहेगा. ठीक है. एंड देन इज द नेशनल सेविंग. So national saving equals to the private saving plus public saving, which remains after providing consumption and government expenditures. So national saving is the combination of outcome of personal, business and state saving. So according to this business saving, when any business or any financial institutions earns a lot of profit, then it saves a partial amount to fulfill future needs to generate business components. So business save in that period and when they do not actively distribute these profits or dividend among participators and shareholders. So national saving वो part है जो कि public और private saving के total से यानी कि summation से आते हैं. तो जब आप प्राइवेट सेविंग्स में से एक इंडिविजुअल के सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं और पब्लिक सेविंग्स में से सारे पब्लिक एक्सपेंडिचर्स माइनस कर देते हैं, उस अमाउंट को, बचे अमाउंट को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास नेशनल सेविंग्स आती है. ये वो पैसा है जो कि गवर्नमेंट के ट्रेजरी में, खजाने में पहुंचेगा और वहां से इसका दूसरा यूज या कोई नया प्रॉफिटेबल यूज सोचा जाएगा. उसी तरीके से बिजनेस के अंदर भी सेविंग्स होती हैं. अब एक बिजनेस है जो कि चल रहा है, उसके कुछ शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं. अगर कंपनी ये डिसाइड करती है कि वो अपने प्रॉफिट और डिविडेंड्स को शेयर होल्डर्स के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी और उसको एज अ रिटेन्ड अर्निंग्स रख लेगी, तो उसे भी हम बिजनेस सेविंग्स के नाम से जानते हैं. मतलब दैट रिटेन्ड अर्निंग अमाउंट्स कैन बी कंसिडर्ड बिजनेस सेविंग्स ऑल्सो.
So what is this national income is important, and how does it play part in the development of a country? National income, consumption, savings, and investment plays a very important role in displaying nation's economic performance. These elements are all closely related. एक व्यक्ति कितना कंजम्पशन कर रहा है, एक व्यक्ति अपने घर के लिए कितना दाल चावल आटा खरीद रहा है, वो कितना बिजली का बिल पे कर रहा है, ये कंजम्पशन में आता है. उसके अलावा अपनी इनकम्स में कितना सेव कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है, और उसके अलावा गवर्नमेंट के पास पब्लिक और प्राइवेट सेविंग्स कितनी है, मिला के नेशनल सेविंग्स कितनी है. तो ये सारे पॉइंट्स आपस में क्लोजली रिलेटेड है, और ये डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट कैसे ह्यूमन पॉपुलेशन को, अपने कंट्री की पॉपुलेशन को बेनिफिट करेगी. So generally investment should be made in those industries which produce better commodities, having better demand, so we can understand easily the saving part of disposable income. Saving creates investment which is resulted in capital accumulation, productivity gain, and growth. If saving is not kept in a proper way, it will not reach its desired goal. इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़रूरी है. अगर हम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. इन्वेस्टमेंट करते समय वो कुछ अपना क्या कहते हैं, रिस्क लेता है, और जब उसे उससे प्रॉफिट होता है तो वो उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेटर बना देता है. और ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में भी कही थी, ये पॉइंट यहाँ पे फिर से डिस्कस हो रहा है कि ये कई सारी रिसर्चेज में, यूएन की रिसर्चेज में, आईएमएफ की रिसर्चेज में ये नोटिस किया गया है कि जो रिच कंट्रीज है वहाँ पे लोग ज़्यादा बेटर तरीके से सेव कर पाते हैं, और पुअर कंट्रीज में सेविंग की टेंडेंसीज कम होती है. ऐसा इसलिए होता है कि एक जो नेशनल लेवल ऑफ इनकम है वो पुअर कंट्रीज में रिच कंट्रीज के कंपैरिजन में कम है, जिसकी वजह से वो अपना एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड, फेवरेबल लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाते. तो इस केस में किसी भी गवर्नमेंट की ये एक इनहेरेंट पॉलिसी होनी चाहिए, इनहेरेंट रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि वो लोगों को इनकरेज करे कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स में वो पार्ट ले. So this was the content for this lecture. So in today's lecture we studied the role of saving practices. Why savings is important? Savings करना क्यों important है? क्योंकि इसकी हेल्प से हम फ्यूचर नीड्स के लिए पैसे जमा कर सकते हैं, अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं. कोई आपदा आने पे, कोई कठिन समय आने पे, कोई इमरजेंसी आने पे भी हम ये पैसा यूज कर सकते हैं. सेविंग्स आपकी 3 तरीके की हैं: पब्लिक, प्राइवेट एंड नेशनल. प्राइवेट सेविंग्स वो है जो एक व्यक्ति अपने लिए अपने घर पे करता है. पब्लिक सेविंग्स वो है जब वो गवर्नमेंट को पैसा देता है, बैंक में पैसा इन्वेस्ट करके या उसको टैक्स पे करके. और नेशनल सेविंग्स आपकी वो है जो पब्लिक और प्राइवेट सेविंग्स को ऐड करके जिसकी वैल्यू आती है. और ये सभी ज़रूरी है, किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत इम्पेरेटिव है या बहुत ज़रूरी है कि वो अपने जो पॉपुलेशन है उनको सेविंग्स करने के लिए इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनकरेज करें, सो दैट इकोनॉमी में पैसा फ्लो कर सके. So this was all for today's lecture. I hope you understood it all. अगर आपको कोई भी further questions है तो आप मेरी email ID पे अपने questions भेज सकते हैं. I'll try to answer this as soon as possible. So thank you so much, students, listening to me very patiently, trying to understand that why are important and why we need to learn about investment. Okay. Next हम इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल और रियल सेविंग्स क्या होती हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में. सो अंटिल देन, हैव अ वेरी नाइस डे अहेड and see you soon in your next lecture. Thank you so much, students.